بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، معزز ساتھیوں اور مسلمان بھائی، امام الانبیاء، سرور کونین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یعنی جس طرح ایمان کی وجہ سے انسان کے دل، باطن اور عقائد کی صفائی ہوتی ہے اور روحانی طور پر انسان صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح طہارت، صفائی، غسل اور وضو کی وجہ سے انسان ظاہری طور پر صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. یا جس طرح ایمان لانے کی وجہ سے زمانے کفر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح طہارت اور وضو کرنے کے بعد انسان کے آدھے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یا ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرتے. شروع میں 16 یا 17 یا 18 مہینے تک مدینہ منورہ کے ہجرت کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر حکم آیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اگر بیت المقدس کی طرف نماز ٹھیک تھی تو پھر اس طرف جو نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اس کا ثواب نہیں ملتا، یہ نمازیں ضائع ہیں. اور اگر یہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ بھی ضائع نہیں ہے اور یہ بھی ضائع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نمازوں کو ضائع نہیں فرماتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، لیکن نماز کو ایمان کہا گیا اور نماز کے لیے طہارت اور وضو شرط ہے. لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نماز کو قبول نہیں فرماتے. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اب چونکہ وضو اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ
वज़ू, सफाई, तहारत, ये आधा ईमान है। इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है, इस्लाम पाकीज़ा दीन है, और अपने मानने वाले मुसलमानों को भी इस्लाम तहारत और पाकीज़गी का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी वही आई कुरान करीम की, उसमें शुरू वाली वही में जो सबसे पहली मुकम्मल सूरत नाजिल हो गई है, वैसे तो सूरत इक़रा उसकी चंद आयत यानी 5 आयतें शुरू में नाजिल हुई थी, लेकिन फ़तरत वही के इंक़िता के बाद जो सबसे पहली मुकम्मल सूरत आई है वो सूरह मुदस्सिर है। उस सूरतुल मुदस्सिर में भी अल्लाह ताला ने तहारत और पाकी का हुक्म दिया है। या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए जैसे अभी तक आपके कपड़े पाक साफ रहे हैं। तो शुरू वाले अहकाम में तहारत का हुक्म मिला है, बल्कि कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाकीज़गी और सफाई हासिल करने वालों को, पाकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अगर किसी कोई शख्स पाकीज़गी हासिल नहीं करता और इससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो तो उसको मस्जिद के आने से मना किया गया था। शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्लुल जुमाअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, हर बालिग शख्स पर जुमा के दिन गुस्ल करना फर्ज है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान अपना काम काज खुद किया करते थे और बड़े मोटे कपड़े पहनते थे तो उनको पसीना आ जाता था, और मस्जिद का हाल छप्पर वाला था, तो जब बहुत ज़्यादा लोग उसमें जमा हो जाते तो उसकी इनकी पसीने से एक स्मेल पैदा हो जाती थी। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हर शख्स जो जुमे की नमाज के लिए आए वो गुस्ल, तहारत, पाकीज़गी और सफाई इख्तियार किया करे। इसलिए तहारत का बहुत ज़्यादा ताकीद है इस्लाम में। क़ुबा ये एक गाँव है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त तशरीफ़ लाए थे, फिर भी कभी कभार आया करते थे वहाँ। तो उनकी तारीफ़ कुरान करीम ने बयान की है, बाकायदा आयत उतरी है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू, इस क़ुबा में, इस बस्ती में ऐसे लोग हैं जो तहारत पसंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोगों की तारीफ़ कुरान में आई है, आप लोग क्या अमल करते हैं? उन्होंने कहा कि हम ये अमल करते हैं कि पहले ढीला इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल करते हैं क़ज़ाए हाजत के बाद, और फिर ढीला इस्तेमाल करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मुकम्मल सफाई तब आती है जब बंदा ढीला या टॉयलेट पेपर जो उसका कायम मकाम है ये इस्तेमाल करे और उसके बाद पानी भी इस्तेमाल कर ले, तो मुकम्मल सफाई और तहारत आ जाती है, इंसान से बदबू नहीं आती है। तो ये तहारत की ताकीद है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होकर एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिदक गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो कब्रों वालों को अजाब होता है, और किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा, बल्कि एक को अजाब इसलिए हो रहा है अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन नमीमा, वो लोगों की चुगलखोरी किया करता था। एक शख्स इसकी बात शर और फसाद के लिए उस तक पहुंचाई, और उसने जो जवाब दिया वो शर और फसाद के लिए दूसरी की तरफ पहुंचाई, तो आपस में मुसलमानों की लड़ाई पैदा हो गई और इख्तिलाफात पैदा हो गए और फसाद पैदा हो गया। इसको अजाब इसलिए हो रहा है। व अम्मल आखर फकान ला यस्तंज़िहु अनिल बौल, और ये दूसरा जो कब्र वाला है इसको इसलिए अजाब हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, यानी सफाई और तहारत का ख्याल नहीं रखता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। जहन्नम से बचाव के लिए तहारत और पाकीज़गी शर्त है। जहन्नम के अजाब उस शख्स को होगा जो नजस हो, गंदा, उसको जहन्नम का अजाब होगा। इसलिए कुरान करीम में बार बार सफाई और तहारत की ताकीद की गई है कि पाक रहो, साफ रहो, और ये बार बार जो कुरान और सुन्नत इन मसाइल को बयान करता है ये इसलिए बयान करता है कि लोग इससे नसीहत हासिल कर लें। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लियज़क्करू, कुरान करीम में हम ये मसाइल बार बार इसलिए बयान कर रहे हैं, लोगों के सुने हुए हैं बेशक, लेकिन बार बार इसलिए बयान हो रहे हैं लियज़क्करू, ताकि ये लोग इससे नसीहत हासिल कर लें। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, पैगंबर को हुक्म है कि बयान किया करे, वाज़ नसीहत किया करे, क्योंकि वाज़ नसीहत इस्लाम वालों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाता है, और इसलिए भी कि इंसान भूलने वाला है। हर इंसान अव्वलुन नास
اول ناسن آفت العلم النسیان، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام وہ ہے جس سے بھول ہوئی، اور علم کے لیے مصیبت اور آفت یہ نسیان ہے، بھولنا ہے، تو یاد دہانی کے لیے بار بار یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل وضو، طہارت، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، عقائد، معاملات، یہ سب پورا دین کا ہر مسئلہ اہم ہے، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور جو چیز جتنا اہم ہو اور جتنے لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو عام کر دیتے ہیں، نیا نام پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہوا ہر شخص کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، پانی ہر شخص کی ضرورت ہے پینے کے لیے، روشنی ہر شخص کی ضرورت ہے دھوپ کے لیے، بارش ہر شخص کی ضرورت ہے، خوراک ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو بیچتے ہیں۔ تو شریعت ہر شخص کی ضرورت ہے، شریعت کے مسائل ہر شخص کی ضرورت ہے، اور پھر شریعت مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ، معمولی سے معمولی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر مختلف انداز سے شریعت نے بحث نہیں کی ہو، ہر مسئلے پر، یہاں تک کہ مشرکین نے ایک بار اعتراض کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، قیل له لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ یا حتی القراءۃ، کہ تمہیں تمہارا نبی ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ استنجا کا طریقہ تو لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے بہت اچھا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، ہمیں ہمارا نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ استنجا کے وقت ہم قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے، پیٹھ بھی نہ کرے، ہڈی سے استنجا نہ کرے، اور نجس چیز سے استنجا نہ کرے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ تو شریعت کا کمال ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ وضو کو لے، وضو کو شریعت نے مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا تفصیلاً بیان کیا ہے، مکمل وضو بیان کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو چہرہ دو، وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرائض قرآن کریم نے وضو کے بیان کر دیے۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو عربی زبان کا لفظ ہے، وضو کہتے ہیں نورانیت کو۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء میں اور دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وضو کہتے ہیں حسن کو، جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ بہترین اور حسین ہو جاتا ہے۔ وضو کہتے ہیں طہارت اور نظافت کو، جب انسان وضو کرتا ہے تو انسان بالکل پاک صاف اور طاہر اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور شریعت میں وضو اس کو کہتے ہیں غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس، 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ ان 3 اعضاء میں سے پہلا عضو چہرہ ہے۔ چہرہ کتنا دھونا فرض ہے؟ چہرہ دھونا یہ سر کے بالوں سے لے کر متوسط انسان، عام انسان، بعض انسانوں کے بال بہت نیچے تک ہوتے ہیں، بعض انسانوں کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، جو عام انسان ہیں ان کے بال جہاں سے نکلتے ہیں، جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، توڑی کی جو ہڈی ہے اس کے نیچے سے تک، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا وجہ کہتے ہیں سامنے ظاہر ہونے اور دیکھنے کو، جتنا سامنے بندہ دکھائی دیتا ہے بندے کو اتنا دھونا فرض ہے۔ اب اس کو صدغین کہتے ہیں عربی زبان میں، جو داڑھی اور کانوں کے نرم حصے کے درمیانی جگہ ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اسی طرح وضو میں یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ یہ آنکھوں کے کونے، اس میں اکثر میل کچیل رہتا ہے، اس کو بھی انگلیوں سے صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی پہنچے، کیونکہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں ان کو مکمل دھویا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وضو فرمایا اور راستے پر آپ سے آگے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغوا الوضوء، وضو مکمل کر لیا کرو، خشک جگہ نہ چھوڑا کرو۔ ویل للأعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے جو خشک رہ گئے ہوں۔ تلوح وعقاب
अअनाबुहुम तलूह, उनके एड़ियां खुश्की की वजह से चमक रही। तो आपने फरमाया कि इसको जहन्नम की आग छुएगी। तो मुकम्मल धोना, और कोई ऐसी चीज जिस्म पर आज़ाए वुजू पर लगी हुई न हो जिसकी वजह से नीचे पानी सरायत न कर जाए। मिसाल के तौर पर औरतें ऐसी चीजें लगाती हैं, नील पॉलिश वगैरह, जिसका जो है ना तह बन जाता है, उसके नीचे पानी नहीं जाता, तो फिर वुजू नहीं होगा उनका। इसी तरह मर्द अगर वो पैंट कर रहे हैं और पैंट ऐसा है जिसका तह बनता हो हाथों पर, तो उसकी वजह से अगर नीचे चमड़े तक पानी न पहुंचे तो वुजू नहीं होगा। मैल कुचैल है, इसकी वजह से पानी नहीं टिकता, वो पानी अंदर पहुंच जाता है, पानी रुकता नहीं है, इसलिए मैल कुचैल हो तो उसको भी साफ करना चाहिए, लेकिन पानी चूंकि पहुंच रहा है तो वुजू हो जाएगा। और आंखों के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज नहीं है, क्योंकि इससे तकलीफ होती है, और अल्लाह ताला इंसानों को तकलीफ नहीं देते। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आसानियां दे देते हैं उम्मत को, मुश्किलात में नहीं इनको डालते। तो चेहरे का धोना ये फर्ज है। दूसरी चीज हाथों का धोना कोहनियों समेत। अब चेहरे में एक मसला ये है कि बाज़ लोगों की दाढ़ी नहीं होती है, बचपन की वजह से या दाढ़ी निकली हुई नहीं है, तो उनके लिए तो थोड़ी और जबड़ा, ये नीचे वाले दांतों को बंदा हिलाए तो जितनी जगह हिले यही चेहरा है, यही जबड़ा है, इसका धोना फर्ज है, इस पर पानी बहाना और इसको पानी पहुंचाना फर्ज है। लेकिन अगर किसी शख्स की दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी की अव्वलन दो किस्में, अरबी जुबान में एक को कहते हैं लहिया खफीफा, लहिया खफीफा यानी मामूली हल्की दाढ़ी जिसको हम कहते हैं, जिसके नीचे वो खाल नजर आती हो। अगर दाढ़ी के नीचे खाल और चमड़ा नजर आ रहा हो तो फिर खाल और चमड़े तक पानी पहुंचाना फर्ज है। थोड़ी पर मामूली सी दाढ़ी है या दाएं बाएं मामूली सी दाढ़ी है, हल्की दाढ़ी है, तो फिर पानी पहुंचाना फर्ज है। लेकिन अगर दाढ़ी घनी है तो फिर उसकी दो किस्में हैं, एक है लहिया कस्सा गैर मुस्तरसला और एक है लहिया कस्सा मुस्तरसला। अगर दाढ़ी ऐसी है कि मामूली दाढ़ी है, छोटी छोटी दाढ़ी है, लेकिन वो इतनी घनी है कि उससे चमड़ा और काल नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटी छोटी है, चेहरे के हुदूद के अंदर है, तो फिर उन बालों को धोना चेहरे के धोने के कायम मुकाम है, उन बालों को धो ले। लेकिन अगर लहिया कस्सा भी है, मुस्तरसल भी है, लटका हुआ भी है नीचे की तरफ, जैसे मेरी दाढ़ी हो गई है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तो फिर इस दाढ़ी का धोना ये फर्ज नहीं है। हाँ, जो चेहरे को हुदूद में दाढ़ी है, चेहरे के हुदूद में जैसे सामने सामने नजर आ रही है, इस पर पानी बहाना जरूरी है कि इस पर पानी बहाया जाए। ये दाढ़ी का हुक्म है जो चेहरे के साथ जो चेहरा धोना फर्ज है वुजू में, उससे मुताल्लिक दाढ़ी की तीन किस्में, इसको याद रखना जरूरी है। दूसरी चीज हाथों को धोना कोहनियों समेत, यानी कोहनियां खुश्क नहीं रहना चाहिए। वअयदियकुम इलल मराफिक, हाथों को धो। अब हाथ इसको कहते हैं कि उंगली से लेकर कंधे तक ये पूरा हाथ है, लेकिन कुरान करीम ने कैद लगा दिया कि ठीक है इलल मराफिक, कोहनियों तक धो लो, और जहां कैद लग जाए वहां वो हुक्म रुक जाता है। तो यहाँ फर्ज तो रुक गया, लेकिन मुस्तहब और सुन्नत ये है कि इंसान चाहे कि मेरे आज़ा नूरानी हो जाए तो आगे तक भी हाथ धो सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे तक हाथ धोया करते थे, लेकिन फर्ज ये है, फर्ज इतना हाथ धोना है कि ये कोहनियों समेत ये पूरा जो है ना वो धो ले, तो इतना फर्ज अदा हो जाएगा। तीसरी चीज सर का मसा, ये फर्ज है। हजरत मुगीर इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के गंदगी के ढेर पर तशरीफ लाए, वहां पेशाब फरमाया और वुजू फरमाया। वमसहा अला नासियतिही व खुफ़ैहि, सर के चौथाई हिस्से का मसा किया और मोज़म का मसा किया। सर के चौथाई हिस्से का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। अब एक शख्स ऐसा है जिसके सर पर बाल नहीं थे, लेकिन उसने खूबसूरती के लिए या किसी जरूरत के तहत बाल लगवाए, तो बाल लगवाने की तीन किस्में होती हैं। बाद लोग ऐसे बाल लगाते हैं कि उसको कहते हैं फिक्स बाल, फिक्स बाल इसको कहते हैं, फिक्स। एक को कहते हैं टॉप सिस्टम और एक को कहते हैं सर्जरी। टॉप सिस्टम ये होता है कि मामूली सी टोपी होती है बारीक सी, उसके साथ बाल जुड़े हुए होते हैं, उस टोपी को पहन लेते हैं तो वो बाल ही नजर आते हैं और गंजा सर नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे बाल अगर किसी ने पहने हुए हैं तो उसके ऊपर मसा जायज नहीं है, और गुस्ल में अगर ये बाल हटाए नहीं और सर खुश्क रह गया तो फिर गुस्ल भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इसको आसानी से उतारा जा सकता है और ये इसके अपने बाल नहीं है, ये तो किसी
किसी और चीज़ के बाल हैं, इसके ज़ाती बाल नहीं है, तो इसके धोने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, इस पर मसा करने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा अगर सर के चौथाई हिस्से का मसा नहीं हुआ है। और एक वो बाल हैं कि किसी शख्स ने बाल लगवाए हैं लेकिन वो जगह जगह से निकाल कर दूसरी जगहों में सर्जरी की है, तो ऐसे बाल इसके अपने बाल बन जाते हैं, तो उसके साथ गुस्ल करना भी जायज़ है और उसके साथ जो है ना उस पर मसा करना भी जायज़ है। सर्जरी अगर किसी ने की हो अपने बालों की और वो बाल बढ़ते भी हों तो वो फिर उसके असली बाल होते हैं। चौथा फर्ज वो पाँव को धोना है। कुरान करीम ने हुक्म दिया है वअरजुलकुम इलल काबैन, पाँव को दो टखनों समेत। अब कुरान करीम में साफ सुथरा हुक्म पाँव के धोने का है। होना तो ये चाहिए, अफजल ये है कि इंसान पाँव को धोए, लेकिन शरीयत ने इसमें आसानी रखी है। आसानी, जहाँ शरीयत ने आसानी दी हो वहाँ आसानी पर अमल करना जायज़ होता है, लेकिन जहाँ शरीयत ने आसानी नहीं दी हो वहाँ कोई शख्स अपनी तरफ से आसानी के लिए उस हुक्म छोड़ेगा तो वो हुक्म पूरा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स से सर्दी है, वो कहते हैं कि सर्दी की वजह से शरीयत आसान है, मैं चेहरे को धोता नहीं हूँ, चेहरे पर मसा करता हूँ, या हाथों को धोता नहीं हूँ, हाथों पर मसा करता हूँ, तो ये आसानी शरीयत में मोतबर नहीं है। वो आसानी मोतबर है जो शरीयत ने दी है। लिहाजा कुरान करीम का जो हुक्म है इसका मुतबादिल शरीयत ने पेश किया है, और शरीयत जब कोई मुतबादिल पेश करता है, वो मुतबादिल जब किसी तरह साबित हो, जैसे कुरान की आयत साबित है, तो उस मुतबादिल पर अमल करना जायज़ हो जाता है, और वो है मौज़ों पर मसा करना। लिहाजा मौज़ों पर मसा करना जायज़ है क्योंकि ये मशहूर और मुतवातिर काफ़ी ज़्यादा अहादीस से साबित है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा कुल्तु बिल मस्ह, मैंने उस वक़्त तक मसल खुफ़ैन पर फतवा नहीं दिया हत्ता जाअनी फीहि मिस्ल दौइन नहार, यहाँ तक कि मेरे पास इस मसा अलल खुफ़ैन यानी मौज़ों पर मसा करने के इतने दलाइल आ गए जो सूरज की तरह रोशन और वाज़िह थे, तो फिर मैंने मौज़ों पर मसा करने का फतवा दिया। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदरकतु 70 रजुलन मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 70 सहाबा को देखा है कि वो मौज़ों पर मसा करते थे। तो मौज़ों पर मसा करना मुतवातिर रिवायत से साबित है। अगर मुकीम अपने घर पर रहने वाला शख्स मोज़े पहन ले बावजू होकर, तो जब उसका वजू टूट जाए उससे लेकर फिर अगले 24 घंटे तक जब ये वजू करे तो मौज़ों पर मसा कर सकता है। 3 उंगलियों के बकदर नीचे से ऊपर की तरफ खत के नीचे, और ये इसका मसा हो जाएगा। और अगर कोई मुसाफिर है वलिल मुसाफिर सलासत अय्यामिन व लयालिहा, तो वो 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है। जहाँ तक जुराबों की बात है, तो जुराबों पर मसा करने के बारे में जुराबों की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक वो जुराबे होते हैं जो बिल्कुल मोज़े की तरह, उसको कहते हैं मुजल्लदैन, के नीचे भी चमड़ा लगा हुआ है, ऊपर भी चमड़ा लगा हुआ है, ऐसे जुराबों पर मसा करना जायज़ है। एक जुराबे वो हैं जो मुनअलैन है, उसके नीचे चमड़ा लगा हुआ है, ऊपर चमड़ा लगा हुआ नहीं है, उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल उस पर भी अगर कोई मसा करना चाहे तो मसा कर सकता है। और एक वो जुराबे हैं जिसके ऊपर नीचे चमड़ा नहीं है, फिर उसकी 2 किस्में हैं, एक बारीक जुराब होते हैं और एक मोटे जुराब होते हैं। अगर बारीक जुराब हो तो अइम्मे अरबा मज़ाहिब अरबा में से और पूरी उम्मत में से कोई शख्स भी बारीक जुराबों पर मसा करने का कायल नहीं। वजह यह है कि कुरान करीम के हुक्म का मुतबादिल जब पेश कर लिया जाए तो वो मुतबादिल भी सही कसीर अहादीस से साबित होना चाहिए। और मसाल जुरबैन के बारे में एक दो अहादीस है, और इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में फरमाते हैं कि ये ज़ईफ़ है। जब वो ज़ईफ़ है तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं है। लिहाजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े आइम्मा है, इनमें से कोई भी बारीक जुराबों पर जिसके ऊपर नीचे चमड़ा ना हो मसा करने का कायल नहीं है। दूसरी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह जुराबे थे ही नहीं। वो जो जुराबे पहनते थे वो टाट किस्म के होते थे, और उसी टाट किस्म के जुराबों के बारे में 9 सहाबा से अमल मंकूल है कि वो टाट वाले जुराबों पर मसा करते थे, जिसको सकीनैन कहते हैं। तो फुक़हा ने उन जुराबों को देखकर जुराबों पर मसा, उस तरह के जुराबों पर मसा करने का कौल किया है, जिसमें 3 शराइत हो। पहली शर्त यह हो कि वो मोटे हों और उससे पानी न छने। दूसरी शर्त यह है कि वो इतने मोटे हों कि छन कर पाँव नजर ना आए। तीसरी शर्त यह है कि उसमें बंदा 3 मील छक सकता हो।
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خود بخود پاؤں پر بغیر ربڑ کے اور بغیر باندھنے کے قائم رہ سکے. جیسے ٹاٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اس طرح کھڑا کر دے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بغیر کسی سہارے کے. اور یہی بات صحابہ سے تابعین نے دیکھ کر فرمائی ہے. ارشاد یہاں وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں یمسح علی الجوربین اذا کانا سفیقین، جورابوں پر مسح تب جائز ہے جب وہ موٹے ہوں، اور موٹے کی تعریف میں نے کر دی. لہذا ہمارے آج کل جو رائج جرابے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور اس طرح جرابے صحابہ نے بھی نہیں پہنے ہیں، پیغمبر نے بھی نہیں پہنے ہیں، جو باریک ہوتے ہیں جس میں پانی جسے پانی چھن سکتا ہے، اس سے قرآن کے حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق